topic. What we learned last Sunday? Mystery of God, part Huh? 3. Mystery of God, part 3. Mystery of God, Part 3. part 3. Okay. और क्या सीखा था हमने? Spirit is a connection to God. हाँ? Our spirit is our connection to God. Our spirit is a connection to God. Okay. और हमने क्या सीखा था? Spirit is a person. Spirit, Holy Spirit is a person. Very good. Holy Spirit is not a dove. It's not a cloud. It's a person. Amen. खुदा का पाक रूह कुदस क्या है? एक शख्स है. ना तो वो कबूतर है, ना ही वो बादल है. वो एक शख्स है. It's personality. It's a person. और Spirit came first, body came later. Spirit came first, body came later. No. Jesus. Soul came first, then body, then spirit. Jesus said in John chapter number 14, verse number 26, I'll give you another comforter, which is the Holy Spirit, who will make you remember all things. Very good. और हमने क्या सीखा था? The Father, the Son, and the Holy Spirit testify for each other. Amen. And Holy Spirit sanctifies. Holy Spirit हमें sanctify करता है. Jesus क्या करता है? Justify. Jesus redeem करता है, बच गया. और Father? Justify. Father क्या करता है? Create करता है. Father create the thing, Jesus redeem the thing, and Holy Spirit sanctify the things. बाप जो है वो चीजों को तख्लीक करता है, बेटा उन चीजों के कीमत चुकाता है, और होली स्पिरिट पाक रूह कुदस ने क्या करता है? पाक और साफ करता है. Amen. और Earlier there was no concept of a church, but then Solomon built the church, and then it is important to come to the house of the Lord to pray. very good. और सिल्विया हम एक खुदा को, तीन खुदा को नहीं, एक खुदा को मानते हैं। very good. We are not worship three God. Remember this thing. Lot of people debate on this only. बहुत से लोग इसी पे बहस करते हैं कि मसीह लोग कितने खुदाओं को मानते हैं? तीन खुदाओं को, बाप, बेटा और पाक रूह कुदस. But we worship only one God. और और हमने खुदा के घर में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदावन ने पहले मूसा को कनान सभा का नक्शा दिया और उसके बाद सुलेमान का हैकल बनाने के लिए. very good. The house of God is very important. खुदा का घर जो है बहुत ही क्या है? जरूरी है. इसीलिए खुदा ने मूसा को कहा कि अब मैं लोगों के बीच में रहूंगा. I live with my people. मैं अपने लोगों के बीच में रहूंगा. Come. Father, Son, and the great Holy Spirit are connected. They're not separated, but they're connected. They're one. Yes. Father, बाप, बेटा और पाक रूह कुदस तीनों क्या है? एक है. Very good. और People cannot say we believe on the mind and we don't believe on the body, or we believe on the body but not on the spirit. But we have to believe on everything. very good. और Father is also omnipresent, Holy Spirit is also omnipresent, Son is also omnipresent. very good. खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह कुदस तीनों मौजूद है. Welcome, Alex. After getting job, so long we see your face. Only convincing your father. Huh? No problem. No excuse for Jesus. Remember, no excuse for church, no excuse for Jesus. Night shift, day shift is that God give you health. God give you strength. Even you sleep 4 hours, the God is complete your sleep. Amen. उसी खुदा ने आपको ये जॉब दी है. उसका शुक्र अदा करें. Amen. और हमने क्या सीखा था? The word basar used for body. हाँ? The word basar. That is not part 3. That is part 2. Come on. और हमने क्या सीखा था? Felix. God, Wait. Your name is not Felix. You change your name? Come on. Body, spirit, and soul is one. Yes. And they all work together as one. Very good. The word Trinity is not mentioned in the Bible, but in the first chapter of Genesis, it's mentioned that let us make man in our Very own good. image. Very good. तस्लीस का लफ्ज जो है वो बाइबल में आपको नहीं मिलेगा. तस्लीस का लफ्ज जो है, अगर आप तस्लीस ढूंढेंगे, ट्रिनिटी ढूंढेंगे, तो बाइबल में आपको नहीं मिलेगा. मगर वो तीनों जो है
खुदा के अकनूम जो है उसके नाम जो है तस्लीस के अंदर आपको खुदा के कलाम में पैदाइश की पहली किताब उसके पहले चैप्टर के अंदर उसकी पहली आयतों में आपको मिलेगा। आमीन। और कम ऑन, और हमने क्या सीखा था मनाज साहब? Let us make man in our own image. Yeah, that is part 1. और हमने क्या सीखा था? Okay. Shall we continue? Yes. Amen. Now we see the Psalm 100 verse number 3. Verse number 3. Yeah. Know ye that the Lord He is God, is He that made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Amen. जान लो कि खुदावन ही खुदा है, खुदावन ही खुदा है। खुदावन जो है मैंने आपको बताया था, the word Jehovah they are not using in Old Testament because they are afraid, they are scared. क्योंकि खुदा के कलाम में 10 हुक्मों में ये हुक्म था कि तू खुदावन अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। ये कलाम में लिखा हुआ था, इसीलिए that's why the people of Israel they are scared, they have a fear. उनकी जिंदगियों में ये खौफ था कि अगर हमने खुदा का नाम बेफायदा लिया, if you call the name of Jesus or call the name of Jehovah or in an unnecessary way, there is something punishment also. That's why they are not calling the name of Jehovah. They replace that name with which name? Adonai. Adonai means Lord. Adonai का मतलब क्या है? Lord. That's why Sarah called Abraham Lord. समझ रहे हैं आप मेरे बात को? सारा भी इसीलिए उसे क्या कहती है कि तू क्या है? मेरा खुदा है, मिजाजी खुदा है। Amen. Thank you very much, Uncle ji. God bless you. John chapter 1 verse 3, don't read it. Job 33 and verse number 4. Each one of them made us. बाप ने, बेटे ने और पाक रूह कुदस ने मिलके इंसान को बनाया है। Amen. Holy Ghost quickened the dead. Father raised the dead. Son raised the dead. खुदा बाप जो है वो मुर्दों को जिंदा करता है, खुदा बेटा जो है वो मुर्दों को जिंदा करता है, खुदा पाक रूह कुदस जो है वो मुर्दों को क्या करता है? जिंदा करता है। They all work the same and same title. वो तीनों का एक ही टाइटल है और वो तीनों एक ही काम करते हैं। Called quickened spirit. John chapter 5 verse 12. Don't read. John 6:33. Other mystery, each one Jesus raised from dead. खुदा बाप ने और पाक रूह कुदस ने मिलकर यीशु को मुर्दों में से उठाया। Amen. 1 Corinthians chapter 6:14, John 2:19, 1 Peter 3:18. Each one commissions the ministry. इन सब के पास किसका हुक्म था? खिदमत का। ये खिदमत करते थे। 2 Corinthians chapter 3 verse number 5, 1 Timothy chapter 1 verse number 12, Acts chapter 20 verse number 28. Each one sanctified. हर एक जो है वो क्या करता है? तकदीस करता है, पाक और साफ करता है। Amen. Father sanctifies. खुदावन ने यीशु से कहा कि बनी इस्राएल को उनको क्या कि अपने आप को पाक साफ कर लो, क्योंकि कल मैं तुम्हारे बीच में आने वाला हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी में मौजूजात करने वाला हूं। Amen. Jesus prays, Father, sanctify them. खुदावन यीशु ने बाप से दुआ की, क्या है? बाप तूने क्या कर? पाक कर। Amen. Through the word.
Holy Ghost shall sanctify. खुदा का पाक रूह हमें क्या करता है? पाक और साफ करता है. While they are in the world, Jude chapter number 1, Hebrew 2:11, Romans 15 and 16, Romeo 15 और 16, each one perform all spiritual operation. ये रूहानी आलम में जितने काम होते हैं बाप, बेटे और पाक रूह कुदस की कुदरत से होते हैं. Amen. They all work together on everything. जो कुछ हम देखते हैं आसमान और जमीन के नीचे, इन सब में खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह कुदस की कुदरत पाई जाती है. Amen. 1 Corinthians chapter 12 verse number 6. पढ़े अभी. I'm to bring water. 1 Corinthians chapter 12. पहला करंथियों. and Yeah. there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. Amen. उर्दू में पढ़े. पहला करंथियों 12 बाब और उसकी 6 आयत. और तासीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है. Amen. Colossians chapter 3 verse number 11. Colossians कुलसियों 3 बाब और उसकी 11 आयत. Colossians chapter 3 verse 11. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, कुलसी. Yeah, you read. barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Amen. How can we do illustration, which is a mystery? What is the meaning of illustration? John? To show something. To show? To describe. To describe something. Picturize something. Piक्चराइज समथिंग. उर्दू में बताओ. Present. उर्दू में क्या है? इलस्ट्रेशन. दिखाना. दिखाना. वेरी गुड मैनर्स. दिखाना. वेरी नाइस उर्दू. Amen. How can be 3 person in one God? किस तरह आप दिखा सकते हैं कि तीनों जो है एक खुदा में. Amen. आओ. Illustration. कैसे पिक्चर दिखाओगे? Can't see. आओ. अभी मैंने इतना बताया, आपको समझाया. Father, Huh? Father, How? No, she said soul, body, or mind, but how to show. How to show? लोग में से किसी ने 2 साल पहले सवाल पूछा था कि मुझे कोई रीजन बताएं कि मैं खुदा को मालूं. Give me one reason to believe God. I have a sermon 2 part on that. Give me one reason to believe God. उसका टाइटल ही है. सो अगर कोई पूछ रहे आपको कि 3 खुदाओं का आप किस तरह इलस्ट्रेशन करेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे? एक खुदा. कम ऑन, अभी मैंने आपको समझाया, एक ही मिसाल दी थी आपको. हाउ? Is undescribable. Huh? Is undescribable. Is undescribable. I know. he's virtually everywhere. कम ऑन, किस तरह आप बताएंगे कि 3 खुदाओं को अगर कोई पूछ रहे आपसे कि आप उन्हें बयान करके बताएं कि आप किस तरह समझाएंगे? Illustration. Because किस of the तरह? miracles. हाँ? Because of all the miracles. मौजज़ात से और Jesus rose from the dead. ओके, कलाम से. Born from the virgin. Born from the virgin womb. कवारी मरियम से पैदा हुआ है यीशु. Amen. और ऐसा मिरेकल आज तक दुनिया में नहीं हुआ. Amen. Test tube is different, surrogacy is different, but this is totally different. Outstanding performance of the God. Amen. So we study all this, but still is the mystery. इतना 3 पार्ट तक मैंने ये सारा समझाया, लेकिन आज भी ये बेदी है ना? ऐसे ही है. First of all, Trinity, we see the nature. ये फितरत है ना खुदा की. मौसम बदल जाते हैं, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है ना? द नेचर. नेचर से पता चलता है ना, फितरत से. ऐसे ही है कि नहीं? अब पानी की नेचर को 3 में आप कैसे डिफाइन करेंगे? पानी की एक नेचर है. पानी है ना,
उसको 3 में कैसे आप डिफाइन करें? Hydrogen, हाँ? H2O. Steam. So that is the formula H2O. But how you explain? Steam, very good. Solid. Or Solid. ice, very nice. And liquid. Water is Solid, already- liquid, and gas. No, it's different. पानी जो है, अगर if you see the oceans, समुद्र को अगर आप देखें तो वो बहुत सारा पानी है. उसी पानी को आइस क्यूब कर लें, आइस में अंदर डाल दें, बर्फ के अंदर में डाल दें. So that the limitation of that water. ऐसे ही है ना? You limited that water. And same ice, if you put a fire on that, it's again steam and go up, become water. It's easy to understand. समझ रहे आप मेरी बात को? कि समुद्र को अगर आप देखें तो समुद्र जो है एक पानी है. जब आप उसको फ्रीज करते हैं तो आप उसके ब्लॉक्स बना देते हैं. उस पानी को आप क्या कर देते हैं? उसकी दूसरी कंडीशन में ले आते हैं. लेकिन वो है पानी, वो चेंज नहीं हुआ. उसी पानी को जब आप स्टीम के फायर करते हैं, स्टीम में डालते हैं, गर्म करते हैं, आग लगाते हैं, द सेम वाटर इज बिकम स्टीम. वो क्या होती है? बर्फ जो है मेल्ट होकर क्या होना शुरू होती है? स्टीम बनना शुरू हो जाता है. ऐसे ही है, पानी चेंज नहीं हुआ. God is not changed in the form of the Father, in the form of the Son, in the form of the Holy Spirit. Amen. God is the ocean. समुद्र की कोई गहराई को नहीं नाप सकता. ओके? God is the ocean. बाप को, खुदा बाप को हम एक समुद्र की तरह लेते हैं. When he come into the form of Jesus, he leave all the glory and become the servant. ऐसे ही है ना? उसने अपना पूरा जलाल छोड़ के वो क्या हो गया? He become in the small ice packs. Okay? And the great Holy Spirit in the day of Pentecost, when the fire comes from the heavens, जब आसमान से आग नाज़िल हुई, तो वही पानी जो था गैर ज़ुबाने बन के उनके ऊपर आके ठहरा. और जब वो बोलने लगे, the same water come. Amen? Now you understand? अभी कितनी आपके पास एग्जाम्पल हो गई है? 3. 2. Which 3? Can you tell me which one? The water, the ice cube, and then the vapor. No, that is one example. That is the 3 form of the water. That is the 3. You can say that God. If you see ocean, there is a God. If you see the ice, there is a God. If you see the sea, there is a God. Everything is water. है तो सब पानी ना? Amen? I think this is weak example, or it's okay. Okay? Trinity, but I try to explain you. मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए, ताकि आपसे अगर कोई सवाल पूछे तो आप उन्हें समझा सकें. Amen? The Bible say, Lord our God is one. खुदा का कलाम कहता है कि खुदा एक है. Yet he is Elohim. खुदा एक है, फिर Elohim क्यों है? Because there is a Father, there is a Son, and there is the Holy Spirit. खुदा एक है, लेकिन वो Elohim है. Elohim का मतलब खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाकुल कुदस. Amen? All are same. तीनों क्या है? Same खुदा. वाटर का समझ आ गया आपको, है ना? वाटर हम हैंडल नहीं कर सकते. यू कैन हैंडल द वाटर. एनीवन हु हैंडल द वाटर. Jesus. आई विल डू द एक्सपेरिमेंट. कोई कह सकता है कि मैं वाटर को हैंडल कर सकता हूं? कोई भी नहीं हैंडल कर सकता. We can. Sure? Can. You can. I put the water into your hand and you have to go there and come back there, and I want to see the water level is still same. You can handle it? Yep. You were there. Still you will not do it. Water no one can handle.
We cannot handle God. Amen? हम खुदा को हैंडल नहीं कर सकते. Amen? He is incomprehensible. Amen? Because I can't handle it. मैं खुदावन को नहीं हैंडल कर सकता. He is a creator. मैंने अब शुरू में बताया था कि जो लोग खुदा को जानते हैं वो मजहब के पीछे चलते हैं. कितने लोगों को याद है? जो खुदा को जान जाते हैं वो मजहब के पीछे चलना शुरू करते हैं. The people who knows God, they follow the religion. But Christianity is not a religion. It's a relationship. ये एक रिश्ता है. मसीहत कोई मजहब नहीं है. इसीलिए मसीहत में कोई भी खुदा को नहीं जान सकता. मसीहत एक रिश्ता है. अगर आप मसीहत को मजहब समझ के चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में. अगर ये एक रिश्ता समझ के चलेंगे, यीशु ने क्या किया? यीशु ने बाप के साथ हमारा क्या करा दिया? मिलाप करा दिया. The Jesus reconciled us with the God. उसने हमें क्या किया? बाप के साथ मिला दिया. So that is a relationship. That is not a religion. तो ये एक रिश्ते को बहाल कराया था. ये कोई मजहब नहीं बनाया. यीशु ने कोई मजहब नहीं बनाया. He loves the humanity. वो इंसानियत को प्यार करते थे और आज भी करते हैं. Amen? That is the way God, He is God Elohim. खुदा जो है वो क्या है? एलोहीम है. एंड एलोहीम का क्या मतलब है? एलोहीम जो है वो सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए. आमीन. वाहिद के लिए भी एलोहीम और जमा के लिए भी एलोहीम यूज किया जाता है. देयर इज द नेम ऑफ गॉड. एल जो है वो खुदाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था. गैर कौमें भी अपने माबूदों के लिए एलोहीम इस्तेमाल करती थी. एल इस्तेमाल करती थी. अलो इस्तेमाल करते थे. और इंसानों के लिए और फरिश्तों के लिए भी एलोहीम एल इस्तेमाल किया जाता था. पुराने अहदनामे में अगर हम उसका मुताला करें, इफ यू स्टडी द बैकग्राउंड ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, यू सी देयर इज अ जनरेशन, देयर इज अ जेंटाइल्स हु कॉल देयर गॉड्स एल. सो एल जो है वो ऑलरेडी खुदाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता. आमीन. If you go into the YouTube, अगर आपको इंटरेस्ट है सीखने का, so there is a sermon named Elohim. Elohim के 2-3 पार्ट है जिसमें मैंने खुदा के सारे नामों के बारे में बताया था. किस तरह लोग बनी इस्राइल को खुदा के नाम को जानती थी और किस तरह खुदा ने अपने नामों को इंट्रोड्यूस किया था. How the God introduced their names to the people of Israel. Amen. So Abraham is not a Jewish. Abraham कौन था? इब्राहिम यहूदी नहीं था. ना इब्राहिम इस्राएली था. Come on. बुद्ध परस्ती के साथ उसका ताल्लुक था. खुदा ने इब्राहिम को क्या कहा? सिर्फ जुलियाना को पता है, किसी को? Come on, सिल्विया, रेचल से कहा था कि अपने घराने को, अपने कबीले को छोड़ के मेरी तरफ. वेरी गुड. सो इब्राहिम जो था वो क्या था? इब्रानी था. इब्राहिम कौन था? इब्रानी. और इब्रानी का मतलब पता है क्या है? अपने घर बार को छोड़ देना, अपने रिश्तेदारों को छोड़ देना. इसीलिए वो इब्रानी कहलाता. वो इब्रानी इस वजह से कहलाता. इसका मतलब है कि अपने रिश्तेदारों को, घर बार को छोड़ देना. और उसके जो बेटे हुए थे, इसाक हुआ था, और इसाक से कौन पैदा हुआ था? याकूब पैदा हुआ था. और याकूब का नाम खुदावन ने इजराइल रखा था. तो इब्राहिम जो था इजरायली नहीं था.
ओके, इजराइली कौन था? उसका पोता था। और फिर उसके कितने बेटे हुए? 12। और उनमें से एक बेटे का नाम क्या था? यहूदा, जुदा। और इसलिए इस्राएली कौम को 3 नामों से पुकारा जाता है। They will call Hebrew people, Israeli people and Jewish people. समझ आई अभी आपको? Amen? देखें यहां पे भी 3 ही नाम आए। That's why we call, when we pray, we say the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob. इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा। Please switch off your mobiles, please. Amen? So he is a good and a great God, but it's different state. There is the name changes. In the beginning was the Word, and the Word was with the God. इब्तिदा में क्या था? कलाम था। ये कौन सी आयत में लिखा हुआ है? First chapter of Gospel of John. Gospel of John. Very good, Jeremiah. पैदाइश में नहीं लिखा हुआ। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was in God, and the Word was made solid flesh. कौन था जो इब्तिदा में कलाम था? कलाम खुदा के साथ था, और कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ। कौन मुजस्सम होके आया? यीशु। Amen? That is the form of the water. वो ओशन को कितने सालों तक उसको सॉलिड प्रूफ में बदल दिया? 33.5 years. That water जो पानी था उसे स्क्वीज करके कितने सालों के लिए पैक कर दिया? 33.5 years. जो मुजस्सम होके आया इस दुनिया के अंदर। Amen? और वो हमारे बीच में रहा। खुदा के कलाम में लिखा है, और वो हमारे बीच में रहा और हमने उसके जलाल को देखा। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका पहला बाब, उसकी पहली दूसरी आयत। That's why Jesus said, "He that seen the sea, the eyes see the water." अब वो जो लोग देख रहे हैं वो किसको देख रहे हैं? उसी पानी को देख रहे हैं, खुदा को देख रहे हैं जो कि जीसस की फॉर्म में आया है। He's God. Amen? Now he about to leave and he said, Father is going to send another comforter. अब वो कह रहे कि मैं जाता हूं और बाप मेरा क्या भेजेगा? मददगार भेजेगा। उसका नाम क्या है? Holy Spirit. You not be able to see this one. I'm going away. I will return soon and I will with you. मैं जाता हूं और फिर तुम्हारे पास आता हूं। Amen? खुदावन यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आके तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। Amen? कहां पे लिखा हुआ है? I give you one there. Who give me this answer? John 14. John 14. Very good, Sharma. In my Father's house is many mansions. Amen. You deserve it, one there. But I will not give you. I will give you one blessing. Amen. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. When I come with you and I will remain with you in you. जब मैं आऊंगा तो मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। So God never leave us. खुदा हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। खुदा हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वो हमारे अंदर। Amen? When I come with you and I will remain with you in He said, I am with you, but I am changed my form and I am going to become my spirit again. अब मैं जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि पानी के बारे में, एक ओशंस के बारे में, आइस के बारे में, केटल के बारे में, स्टीम के बारे में, in the day of Pentecost I might be a rushing wind
खुदा कहता है कि अब जो मैं आऊंगा तो एक आंधी की तरह आऊंगा। रसूलों के बाद उसका दूसरा बाप, a mighty rushing wind blew into the place, they saw a fire, और उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखी? आग को देखा। 16 सी फटती हुई जुबानें उनके ऊपर क्या हो गई? आंखें ठहर गई। Come upon them, the disciples had suddenly, उनके सरों के ऊपर आके ठहर गई। 16 जो था, the fire, the flame of fire जो था, उनके सरों के ऊपर आकर क्या हो गया? ठहर गया। किसी ने तो वहां पे गिना होगा ना तो किसी के ऊपर डबल आया, ना किसी के ऊपर हाफ आया, और ना ही किसी को क्वार्टर मिला। एवरीबॉडी गेट वन फ्लेम ऑफ फायर। ऐसा ही है, हर एक को एक जो था 16 की बढ़ती हुई जुबानें उनके ऊपर आके ठहर गई। किसी को आधी नहीं मिली, किसी को डबल नहीं मिली। नाउ पीपल आर प्रेइंग, आई ब्लेस यू विद अ डबल अनॉइंटिंग। एक अनॉइंटिंग तो संभाली नहीं जाती, तो डबल अनॉइंटिंग का क्या करोगे आप? इट्स अ रॉन्ग प्रेयर, इट्स अ रॉन्ग प्रेयर, है ना रॉबिन? यस और नो? नॉट श्योर। हमने हर चीज वही करनी है जो खुदा के कलाम में। Whatever is written in the word of God, if there is a two flame in a one hand, we think it's a double anointing with one person. ऐसे ही है। Don't go for the Old Testament Elijah one. I will explain one day what is the double anointing meaning on that one. But here in the New Testament, we are from the New Testament. Amen? So we are sometimes praying that double anointing come into your life. The man has a one anointing and he is doing nothing. And double anointing, doing nothing. क्या फायदा? कुछ फायदा है डबल anointing का? दुगने मसे का कोई मतलब है आपकी जिंदगी में? There is only one anointing enough for the entire days of your life. Amen? One flame of fire is enough. पतरस के ऊपर एक आया, पालूस के ऊपर एक आया, हाँ, यूहन्ना के ऊपर एक आया, लूका के ऊपर एक आया। लूका था उसमें 120 में शायद हो सकता है, वो भी है ना 120 की जमात में। देयर इज नो स्पेसिफिक नेम। औरतें भी थी, मर्द भी थे, और सबके ऊपर खुदा का पातरू आया। आमेन। इज अ ग्रेट गॉड। तो किसी ना किसी ने तो वहां पे बैठे हुए लोगों का सर गिना होगा ना, कि कितने सर यहां पे आज बैठे हुए, क्योंकि खुदा का पातरू कहां पे आया था? कंधे पे नहीं आया, इस सरों पे आया। आमेन। And the disciples had suddenly, they filled with the steam, the fire, the Holy Spirit, same water, वो आग की फटती हुई जुबानों की तरह उनके ऊपर आया। So there is no power in ice. आइस के अंदर पावर नहीं थी। क्या थी? आइस के अंदर पावर होती है? हाँ? Come on. Come on. So there is no power in ice. That's why Jesus said, wait until you get power from the heaven. Wait in Jerusalem. Don't go anywhere. Pray on the upper room. ऊपर जाके दुआ करते रहो और इंतजार करो जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। Amen? You shall receive power. Why? When you put steam on a locomotive, heat start turn. ऐसे ही है ना, गर्माइश निकलती है ना, पानी के अंदर जब स्टीम निकलती है गरम गरम, तो क्या होता है? स्टीम की ट्रेन्स चलती हैं,
चलती है नहीं? पावर है या नहीं इसके अंदर? या आइस से किसी ने ट्रेन चलाई आज तक? There is a power in the Holy Spirit, in the fire. पाकरू की आग जो है वो उसके अंदर क्या है? कुव्वत है. Amen. You shall receive power. Holy Spirit come upon you, and you bear witness unto me in all the world. Hallelujah. जब खुदा का पाकरू तुम पर आएगा तो दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे क्या होगे? गवाह होगे. Amen. Then what happened? You shall cast demons. Amen. तुम बदरूहों को निकालोगे. कितने लोग चाहते हैं कि वो बदरूहों को निकालें? वेरी गुड. उठा ले यार. खुदा नहीं करना, तू तो नहीं करना. उठा के फिर नीचे कर दिया. हाँ? How many people want to cast out the demons? Amen. Amen. That is only you can do with the power of the Holy Spirit. ये आप नहीं करेंगे, ये खुदा का पाकरू जो आपके अंदर बसता है वो आपको इस्तेमाल करता है और शैतान की सारी कुव्वत पे यीशु के नाम से आप गालिब आते हैं. Amen. Hallelujah. You shall heal the sick. जब आप दुआ करें तो बीमार शिफा पा जाए. Amen. तो वो कौन करता है? Holy Spirit. Amen. You shall raise the dead. Amen. कितने लोग चाहते हैं मुर्दे जिंदा हो? आप दुआ करें मुर्दे जिंदा हो जाए. Amen. Hallelujah. Shall bring the deliverance. लोगों को आप छुड़ाए जो तरह तरह की बीमारियों में, नशे की इल्लतों में, तकलीफों में, कमजोरियों में, जादू टूनों में फंसे हुए हैं, उनके लिए दुआ करें, उन्हें छुड़ा ले. Amen. With the power of the Holy Ghost. Yet they are all water. Amen. Jesus said, John chapter 14, I will return to my Father. खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं अपने बाप के पास जाता हूं. I will advise you read every day John 14. हर रोज यूहन्ना 14 बाब पढ़ा करें. Then you see the Father, Son and the Holy Spirit. हर रोज अपनी डेली बाइबल रीडिंग के अंदर जॉन पढ़ा करें. John 14 every day and Isaiah 53 every day. ये मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैं हर रोज अपनी जिंदगी में पढ़ता हूं. I start from the Psalm 1 to Psalm 36 straight away. एक ज़बूर से लेकर 36 ज़बूर तक कंटिन्यूसली पढ़ता हूं. Then I will go for other Psalms. Around 60 to 70 Psalm I read every day. हर रोज मैं पूरे मुकाशवा की किताब को पढ़ता हूं. That is giving me the strength. खुदा का कलाम जो है हमें क्या देता है? तकवीयत देता है. वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमें बचाता है. जब आप खुदा के कलाम से भरे होंगे, जब आप हाथ रख के दुआ करेंगे तो खुदा का पाकरू कसरत से लोगों को छुएगा. आमीन. कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई जादू टूने, कोई तकलीफ आपके नजदीक भी नहीं आएगी. हालेलुया. The same glory I have from the beginning shall be restored. कि जो जलाल में पहले से रखा था खुदावन, वो जलाल को तू बहाल कर. Water going back to the water. वही पानी जो है दोबारा रोटेट होके ओशन में चला गया. Amen. Water rotating. Water rotating. पानी जो है वो रोटेट करना है, पहले आइस की शक्ल में, फिर स्टीम की शक्ल में, और वो स्टीम दोबारा जाके ओशन में चली जाती है. Amen. Water is going back to the water. Now this is heavenly look. The Son is seated right hand of the Father. आसमान पे एक तस्वीर है जिसपे
आपको दिखता है कि एक बाप है और बेटा उसके कहां पे बैठा हुआ है? दाहिने हाथ पे। दाहिने हाथ का मतलब है द पावरफुल। राइट हैंड इज अ पावरफुल हैंड, डोमिनेटेड हैंड, डिसीजन मेकिंग हैंड, डिलीवरेंस, healing, raising the dead, everything is going to do it in a right hand. आपका दाहिना हाथ जो है इन सारी चीजों को कर सकता है, क्योंकि दाहिने हाथ के ऊपर जो है बाप का इकलौता बेटा बैठा है। आमीन। मुझे नहीं पता कि मुझे ये बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, बट आई वांट टू टेल यू, शायद वो लफ्ज मैं आपको इतने क्लियर ना समझा सकूं, बट आई विल जस्ट ट्राई टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द ग्रेट होली स्पिरिट टेल्स मी। जब भी नई नई शादी होती है, याद रखें, आपकी नई शादी के बाद जब भी आप अपने जिस्मानी रिश्ते में जाते हैं, सो ट्राई टू यूज द राइट साइड, because the woman's right side is the son. राइट साइड के ऊपर जो है वो बेटा होता है, क्योंकि खुदा के कलाम में राइट साइड के ऊपर जो है बाप का बेटा बैठा है, और उसने हमें अपनी ही सूरत और अपनी ही छवि में बनाया। दैट इज द डिवाइन सीक्रेट। शायद आपको बुक्स में ना मिले, शायद बड़े बड़े पास्टरों से ना मिले। That is the great Holy Spirit revealed upon me. खुदा के पाखरू ने ये मुझ पर अया किया। So right hand is the place of the son. जो नए खुदावंद जो नए शादीशुदा जोड़े हैं, और जब भी वो अपने उस रिश्ते में जाए तो यूज करें कि हमेशा जो है राइट हैंड जो है वो बेटे के लिए, राइट हैंड ऑलवेज used for the son. Amen. The great Holy Spirit tells you a lot of things you didn't find any book. जब आप खुदा पाकरू के साथ रफाकत रखेंगे तो वो ऐसे ऐसे भेद आप पे खोलेगा कि आपको किताबों में भी नहीं मिलेंगे। That is the great Holy Spirit. He revealed the secret which is hidden from the beginning. वो उन राजों को खोलता है जो इब्तिदा से छुपे हुए हैं। वो खुदा पाकरू उन राजों को खोलता है। Amen. Interceding to saints and steam is still working hard. आज भी देख ले पाकरू कुदस बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। When you call the name of Jesus, Holy Spirit immediately came. Yes, tell me what I do. Heal in the name of Jesus. He bring the healing in your body. Bring the breakthrough in your business. Holy Spirit, bring the breakthrough in your business. Bring the promotion in the name of Jesus. Holy Spirit, open the door of promotion in your life. Amen. Give it a good job in the name of Jesus. Holy Spirit, open the new door of good job. खुदा पाकरू आज भी काम करता है। जैसे ही आप यीशु का नाम लेते हैं, वो अपने काम को शुरू हो जाता है। You know the greatest commission of the great Holy Spirit. खुदा पाकरू का सबसे बड़ा काम क्या है? Only glorify the name of Jesus. सिर्फ यीशु के नाम को चला दे। Amen. Some God we worship or one God we worship. कितने खुदा को हम मानते हैं? क्या हम एक खुदा को मानते हैं? Amen. All three persons in one. Shout hallelujah! Hallelujah! Hallelujah में सही नहीं कहा, जोर से कहें। Come on, 1, 2, 3. Hallelujah! Amen. Amen. पता चलना चाहिए, जिंदा कलीसिया है, जिंदा लोग बैठे हुए हैं जो खुदा की आवाज को सुनना चाहते हैं, जिन्हें खुदावन बरकत देना चाहता है। Amen. I want to show one more mystery. मैं एक और आपको भेद की बात बताना चाहता हूं। बाइबल से खुदा का कलाम कहता है God is light. खुदा क्या है? नूर है, रोशनी है ना?
ऐसे ही है, लाइट इज अ मिस्ट्री। जिस तरह इंसान एक भेद है, खुदा एक भेद है, इसी तरह नूर भी एक क्या है, भेद है। लाइट इज अ मिस्ट्री। Now light is on, you can see greater light now. हम जब अंदर आते हैं तो एक लाइट ऑलरेडी होती है, फिर भी हम लाइट ऑन करते हैं ताकि हमें और चीजें क्लियर नजर आनी चाहिए। लाइट हैज अ 3 प्रॉपर्टीज। ऐसे ही कम ऑन यंग जनरेशन, माय क्वेश्चन गोज टू किशोर फर्स्ट। डिफाइन लाइट, then John, define light, then Jeremiah, नूर के बारे में बताएंगे, then Robin, come on, then Felix। अगर कोई पूछ ले लाइट क्या है तो कैसे बताओगे, कैसे डिफाइन करोगे लाइट क्या है? When people see something, the brain gives signals to the eyes, so that it can show something as light, something. Okay. Illuminate, वो रोशन हो जाता है ना, illuminate, लाइट रोशन होगी। बट लाइट क्या है? हाँ? बट लाइट क्या है? हाँ, मेरा सवाल है लाइट क्या है? ये किशोर बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। हाँ, ब्राइटनेस इज द फॉर्म ऑफ द लाइट। अगर आप उसे तेज कर दोगे रोशनी के तो ब्राइटनेस हो जाएगी। बट व्हाट इज लाइट? रास्ता दिखाती है। लाइट तो लाइट क्या है? लाइट वो तो उसका काम है ना। लाइट क्या है? लाइट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। वेरी गुड मनस। बट व्हाट इज लाइट? नूर क्या है? कोई आपसे नूर पूछे तो नूर आप कैसे बयान करोगे? नूर इज गॉड। वो उसी की एग्जांपल तो दे रहा हूं मैं, खुदा की एग्जांपल ही मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको समझाया है कि इंसान जो है रूह, जिस्म और जान से बना है, इसी तरह वो 3 पार्ट है हमारे लाइफ के अंदर, लेकिन हम एक ही मेल और फीमेल कहलाते हैं। खुदा भी इसी तरह 3 के अंदर 3 डिफरेंट पार्ट है, लेकिन वो एक ही खुदा है। फिर हमने सीखा पानी के अंदर, अब मैं सिखाना चाहता हूं नूर के अंदर किस तरह बयान करें। ओके, मैं बताऊं? लाइट हैज 3 रेज। नूर के अंदर 3 रेज होती हैं। लाइट हैज 3 रेज, ठीक है? लाइट सन हैज इट। बेटा जो है वो क्या है? दुनिया का नूर है ना? जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का नूर है। ऐसे ही है। लाइट यू हैव इन होम ऑल्सो। आपके घरों में भी नूर है ना? सबके घर में लैंप्स पड़े हुए हैं, बटन ऑन करते हैं, लाइट ऑन हो जाती है। पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल है लाइट का। ओके, फर्स्ट रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड एक्टिनिक रेज। रेज होती है, हमेशा याद रखें, चाहे लैंप हो, चाहे सूरज की रोशनी हो, चाहे किसी भी रोशनी, उसके अंदर 3 रेज होती हैं। पहली रेज होती है एक्टिनिक रेज, इट्स अ इनविजिबल रेज। अगर आप साइंटिफिक लिहाज से देखें, जो रेडिएशन की जाती है, दैट इज अ एक्टिनिक रेज। उसको रेडिएशन की रेज को कोई नहीं देख पाता। जब आप एक्सरे लेते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता, वो अंदर से आपके पूरे लंग्स को दिखा देता है। ठीक कह रहा हूं? कुछ आवाज नहीं आ रही आपकी। So, नूर के अंदर कितनी रेज होती है? 3 रेज होती है। लाइट हैज अ 3 रेज। ओके, वन इज अ एक्टिनिक रे। एक्टिनिक का स्पेलिंग है ACTINIC। रेज इज अ इनविजिबल रेज, इसको कोई भी नहीं देख सकता। ठीक है, जो कि साइंटिफिक दुनिया में आजकल जो है वो रेडिएशन के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता है। उन रेज को कोई भी नहीं देख सकता। सही कह रहा हूं मैं? सेकेंड इज कॉल्ड लुमिनिफ्यूरियस रेज, जो कि हमें नजर आती है। ठीक है, ल्यूमिनिफेरस इज अ विजिबल रेज, ये हमें नजर आती है ना लाइट, लेकिन इसके अंदर भी एक्टिनिक रेज भी हैं जो हमें नजर नहीं आती।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? नूर के अंदर 30 तरह की रेस है। एक है एथनिक रेस जो कि हमें नजर नहीं आती, एक है ल्यूमिनिफ्यूरियस रेस जो कि हमें नजर आती है। दैट द रेस यू कुड सी, और उसके हम क्या करते हैं? देखते हैं। द थर्ड फन इज कॉल्ड द कैलोरिफिक रेस। कैलोरिफिक रेस जो है वो रेस, दिस रेस इज द हीट रेस। वो आपको, जब आप इसको हाथ लगाएंगे तो आपको क्या फील होगा? गर्मी महसूस होगी, है ना? समझ रहे हैं आप? तो हर नूर के अंदर 3 जो है रेज पाई जाती है। अगर एक बीच में से निकाल लोगे, इट्स नॉट वर्क। समझे अभी आप? कौन कौन से 3 रेज हैं? कम ऑन, जो समझा पहले वो बताएं। Actinic, Actinic, okay. luminous, Luminiferous, calorific. calorific. Calorific जो है वो हमें एहसास दिलाती है कि यहाँ पे क्या है? गर्मी है, हीट है। जाके खड़े हो जरा सूरज के आगे, एहसास होगा ये स्किन के ऊपर, वाह जल गई, है ना? It's like that. इसी तरह ना, सो है वो क्या है? एक ही लाइट है, बट देयर इज अ 3 रेज। एक ही खुदा, एक ही खुदा, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। आमेन। वी डिडंट सी गॉड, किसी ने खुदा को नहीं देखा, किसी ने खुदा को नहीं देखा, सबने बेटे को देखा है। एवरीवन सी द सन, and son is the one who revealed the father. बाप ने बेटे को बयान किया। ये भेद बेटे ने आके बताया कि बाप है। Amen. This rays is the heat rays that is felt. और पाक रूह कुदस को हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। जब खुदा पाक रूह आता है तो क्या होता है? कोई रोना शुरू कर देता है, कोई कांपना शुरू कर देता है, कोई गिरना शुरू कर देता है ना? किसी को गर्मी लगना शुरू, किसी के गूज़बम्प्स शुरू हो जाते हैं, फीलिंग शुरू हो जाती है, हीट। नाउ ऑल कम फ्रॉम इन द सेम लाइट। ये तीनों जो है वो क्या है? एक ही नूर का हिस्सा है, वो 3 नहीं है। यू कैन नॉट से इसको अगर मैं निकाल दूंगा तो ये काम करेगी, वो नहीं काम करेगी। सूरज भी इसी तरह काम करता है। आमेन। First rays is an actinic ray that is invisible, but you see his effects. उसका असर हम देख सकते हैं, है ना? रेडिएशन में, एक्सरे में हम उसका असर देखते हैं ना, एक्टनिक रेस का। उसके इफेक्ट्स हम देख सकते हैं। जब आपको लेके जाते हैं, ऐसे हाथ करें, सांस अंदर करें, क्लिक, एक पिक्चर लेते हैं और आपका एक्सरे बाहर आ जाता है। कोई उस रेडिएशन को देख नहीं पाता, है ना? इसीलिए वो कहते हैं कोई भी मेटल, आपके पास मेटल चीज है तो वो आप ना पहने, ऐसे कहते हैं ना? Why? Because that ray is very strong rays. That is invisible, but you see his effect. That is original. Original effect आपको नजर आएगा। जो आपकी रेडिएशन होती है, जो उसकी रिपोर्ट्स आती है, वो ओरिजिनल इफेक्ट है, वो झूठ नहीं है। ऐसे ही है ना? The ray which is visible that you will see coming from light, जो हम देखते हैं रोशनी, वो क्या है? विजिबल है, उसे हम देख सकते हैं। The visible rays that have a power in the heat, उसके अंदर क्या है? कुव्वत है, और जब हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें गर्मी का एहसास दिलाती है। अभी भी आप इसे टच करेंगे, you feel hot, ऐसे ही है ना? कभी कभी किसी ने अपने घर के 500 वाट के बल्ब को जाके बंद करके एकदम उतार दिया, आपने किया? वेरी गुड। हाथ जला या नहीं जला? जला ना? ऐसे ही है ना? हम वेट करते हैं या कोई कपड़ा पकड़ते हैं ताकि हम बल्ब को उतार दें, क्योंकि वो क्या होता है? गर्म हो जाता है रेस की वजह से। आमेन। यू कांट सी इट बट यू फील इट। हम हीट को नहीं देख सकते। कितने लोगों ने हीट को देखा है? You can see हीट को smoke. किसी ने देखा? You can see smoke. You can feel. फील किया है ना?
हाथ लगा के यू कैन फील इट कि ये गर्म है ना? कार्बोनेटर का वो उतार दिया गर्म, वो तो उतार देगा? नहीं उतारेगा। कलमंदा all of them went together, it's called light. तो तीनों रेस जब तीनों मिल जाती है तो क्या होता है? नूर। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह कुदस जब मिल जाते हैं तो वो क्या है? खुदा, एक खुदा। कोई इन तीनों को जुदा नहीं कर सकता। नो यहोवा विटनेस, नो ओनली जीसस, नो मॉर्मन्स, कोई भी इन्हें जुदा नहीं कर सकता। नो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, नो, कोई भी इन्हें जुदा नहीं कर सकता। They all are one. अब लाइट को अलग करें, इसकी तीन रेस में से एक निकाल दे, निकाल सकते हैं? आप कहते हैं कि लाइट भी जलती रहे और गर्म भी ना हो सकता है? नहीं हो सकता ना? आप कह रहे हैं लाइट भी जलती रहे और रोशनी भी ना हो, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये हम खुदा के कलाम में इस तरह सीख रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि अगर कोई पूछे तो हमारे पास इतनी एग्जाम्पल होनी चाहिए कि हम बता सके कि हम कितने खुदाओं को मानते हैं? एक खुदा को मानते हैं। हम तीन खुदाओं को नहीं मानते। बहुत से लोग मसीह लोगों से कहते हैं कि ये तीन खुदा को मानते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह कुदस। बट यू हैव टू टेल वी वर्शिप ओनली वन गॉड। हम सिर्फ एक खुदा को मानते हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल से गॉड इज लाइट एंड हिम नो डार्कनेस एट ऑल। खुदा नूर है और उसमें तारीकी नहीं है। आमीन। देयर इज अ गॉड इज विजिबल फॉर्म, इज अ विजिबल ऑल्सो। गॉड इज विजिबल एंड गॉड इज इनविजिबल ऑल्सो। खुदा को हम देख सकते हैं, खुदा को हमने कभी नहीं देखा, और खुदा को हम महसूस कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। दैट्स व्हाई होली स्पिरिट टच योर लाइफ एंड इट विल बी चेंज्ड। सिर्फ पाक रूह कुदस जब आपको छूता है तो आपकी जिंदगियां बदलती है। खुदा बाप के नाम से नहीं बदलती, खुदा बेटे के नाम से नहीं बदलती, मगर जब पाक रूह छूता है तो आपकी जिंदगियां बदलना शुरू हो जाती है। आमीन। सही कह रहे हो या गलत? कितने मौजे दिखाए खुदा बाप ने पूरे में? हाँ, कितने मौजे दिखाए? I think 2. The whole Bible is full of miracles. कितने लोगों खुदा बाप के पीछे आए? They are always rebellion against God. वो हर दफा खुदा के खिलाफ खड़े रहे, है ना? कितने लोग उसके फॉलोअर बने? कोई भी नहीं। Then the son came. He did the marvelous work. उसने बहुत जबरदस्त काम किए, साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल, अजायब, निशानात और मौजूदों के साथ काम किए। लोगों ने क्या हाल किया यीशु का? हाँ, सूली चढ़ा दिया। ऐसे ही है ना? आज आप किसी के साथ अच्छाई करो, वो आपको सूली पे चढ़ा देगा। है या नहीं? हकीकत है या नहीं? हकीकत है। जफर ने आज कहा, हाँ, वेरी गुड। आप किसी के साथ भलाई के काम करो, यू डू गुड्स फॉर समवन एंड यू गेट द रिजल्ट गुड। No. People believe on karma. That is not karma. In Christianity there is no karma. Try to do it. फिर karma आपको पता चलेगा कैसा देगा वो। He's asking what is a karma? Karma, whatever you sowing, you reaping. जैसा करोगे वैसा भरोगे। That's why the all religion try to doing the good deeds. वो अच्छे काम करते हैं कि उनके साथ अच्छा हो जाए, लेकिन मसीहत में ऐसा नहीं है। It's a totally different. There is no karma. यीशु जैसे अच्छे काम किसने किए हैं? और क्या हाल किया था मेरे यीशु का? किन्होंने करवाया? उन्हीं लोगों ने जिनके लिए वो दुआएं करता था, उन्हीं लोगों ने जिनके लिए वो मौजज़े करता था,
उन्हीं लोगों ने जिनके वो मुर्दों को जिंदा करता था, उन्हीं लोगों ने उसी यीशु को कहां पे चढ़ा दिया? मसलूब करो, इसे मसलूब करो। Crucified him. He say, I am a God. So there is no karma. So don't use this karma word in your life. कभी भी किसी से अच्छे की उम्मीद ना रखे, अच्छा सिर्फ खुदा कर सकता है। Hallelujah! Only God is the one who doing the good thing in your life. जब आपकी नजरें उसके ऊपर होंगी ना, तो ऑटोमेटिकली गुड थिंग्स कम इनटू योर लाइफ। ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। Amen? You want one more example or I close? You decide. One more? Last? समझे अभी आप किस तरह समझा सकते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक कुदस को कि ये एक खुदा है, हम तीन खुदा को नहीं मानते। तो कितनी ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं? Three. Water. पहली कौन सी थी? Water. नहीं। What is the first one? Water. Yeah, body. Then water. Body, soul and spirit. Then water. Then Water. water. Then Light. लाइट। तीनों एग्जांपल्स ऐसी हैं कि इनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। Now one more, the last one. How many people see the triangle? Triangle किसी ने देखा है? You read already in your study. You also read. आपने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। तू भी पढ़ेगा क्या नहीं? ट्रायंगल जरा बनया होता है? ट्रायंगल बनाना ना गड्डी के पीछे, गड्डी पंचर हो जाती है। देखा वो ट्रायंगल? अगर उसका एक किनारा निकाल दो तो बनेगा वो? तीनों बराबर है ना? तीनों बराबर होते हैं या नहीं? अगर तीन लाइनों में से एक लाइन निकाल दो तो ट्रायंगल होगा या नहीं? Triangle is a perfect example of Trinity. Triangle have a three angles. Triangle के तीन एंगल होते हैं, एक, दो और एक ऊपर तीन। ऐसा ही है। If you remove one angle, अगर एक एंगल उसका निकाल दो तो ट्रायंगल कंप्लीट होगा। अगर बेटे के ऊपर ही आपका फोकस होगा, बाप और पासवान कुदस को निकाल दो तो आप खुदा की प्रस्तिश कर सकते हो। अगर आप बाप भी बाप कहते रहोगे, बेटे और रूह कुदस को नहीं मानोगे, तो क्या आप खुदा की प्रस्तिश कर सकते हो? Amen? So any one angle removed from triangle cancel the unity of triangle. Amen? जब कभी भी आप ट्रायंगल के अंदर से एक एंगल निकाल दोगे तो उन तीनों की जो इत्तेहाद है, जो तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी वो इत्तेहाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। So don't go only for one God. Don't worship only Jehovah. Don't worship only Jesus. Don't worship only the great Holy Spirit. They all are one. There is a lot of big missionaries, बहुत बड़े scholars and and what the great Holy Spirit does is only the one God. Amen? हम तीन खुदाओं को नहीं मानते. We worship only one God. What we call triangle, it is a three distinct इक्वल पार्ट, तीन खास तौर पे नजर आने वाले तीन हिस्से हैं जो एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। वो तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। रिमूवल ऑफ वन डिस्ट्रॉय द एसेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रायंगल। अगर तीनों में से एक लाइन को भी, एक एंगल को निकाल दे तो उसकी जो खुशबू है, जो उसका वजूद है, वो खत्म हो जाए। ऐसे ही है ना? सेम एज गॉड ऑल्सो। अगर एक खुदा के शख्सियत को निकाल देंगे आप तो उसका वजूद, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी ताकत, उसकी कुदरत उस तरह आपकी जिंदगियों में
काम नहीं करेंगे। Amen? If you make God Son, only you destroy God. If you make Holy Ghost mind or cloud, you destroy the true essence of God. अगर आप बेटे को ही खुदा मानेंगे और खुदा बाप को कोई अहमियत नहीं देंगे, खुदा पाक रूह कुदस को कोई अहमियत नहीं देंगे, तो खुदा की उस खुशबू को, उस वजूद को आप क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। But together one God, each angle complete, equal with one and other. और जब तीनों एंगल एक दूसरे से आप देखेंगे तो तीनों एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। क्यों आदिल? आदिल स्लीप में जा रहे हैं, सो रहा है आज। Amen? So no matter how you turn a triangle, उस ट्रायंगल को आप कैसे भी घुमा ले, आप कैसे कर देंगे तब भी वो ट्रायंगल रहेगा, आप ऊपर कर देंगे तब भी ट्रायंगल रहेगा, आप साइड में कर दोगे तब भी ट्रायंगल रहेगा, तब आप नीचे कर दोगे तब भी ट्रायंगल रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। Amen? खुदा को जब आप देखोगे किसी भी नजरिए से, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह कुदस तीनों एक है, वो किसी भी एंगल से आप देखें वो कभी चेंज नहीं होंगे। हालेलुया। If you see one side God, one side Son, one side Holy Spirit, they all are equal. वो तीनों बराबर है और वो तीनों मिलकर काम करते हैं। Amen? अगर आप बाप की साइड देखें तो बेटा भी उसके साथ कनेक्टेड है और होली स्पिरिट भी उसके साथ कनेक्टेड है। ऐसे ही है। ट्रायंगल का पहला कॉर्नर अगर आप हेड ले ले, एक पॉइंट ले ले, तो ये फादर हो गया, दूसरा कनेक्ट ये हो गया, जीसस हो गया। अब यहां से जो नीचे आएगा वो जीसस से भी कनेक्ट है और फादर से भी कनेक्ट है ना? वो होली स्पिरिट हो गया। तो तीनों एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। इसे कभी जुदा ना करें। ऐसी फॉल्स डॉक्ट्रिन से बचें, ऐसी बुरी तालीमात से बचें जो खुदा के खिलाफ आपको खड़ा करती है। Amen? God bless you with this wonderful message. Amen.